After farmers announced to resume their protest, farmers from different states have gathered at the borders of Delhi. Haryana police have taken action meanwhile against protesting farmers at the Punjab-Haryana Shambhu border by firing tear gas shells. The farmers, persistent in their demand for MSP from the government, came prepared with gas masks, bulldozers and heavy machinery to confront the police. Meanwhile, we are learning from the reports that farmers have put the protests at hold currently, but they are still at the borders, and security has also continued to be heightened. Akshat Gupta joins us from the Singhu border for more on this story. Akshat, what is the situation today at the Singhu border? Is security still at a heightened state? Well, the deadlock between the farmers and the centre still continues over farmers' a new set of demands. Of course, the legal guarantee for MSP and other demands. When we talk about the preparations done by the police and of course the government to restrict the movement of the farmers, then currently at the Singhu border, there of course you can see how the security forces, there on the ground, RAF there, a rapid action force and officials of Delhi police are also there to keep a continuous vigil on any kind of movements of the farmers because this is, one of the key routes when it comes to farmers protest. Singhu border, of course, connecting to different parts in Haryana, Kundli, Sonipat, of course the industrial areas also. If the farmers proceed towards the national capital, then of course this is one of the key routes. So for that very reason only, police on the ground, then cement blocks, of course with barbed wires have also been set up so that their movement can be thwarted and any attempt to enter the national capital can be thwarted. So of course, heavy deployment of police personnel here at the Singhu border. And also, when we talk about the protest, then they have paused it for 2 days, for today and tomorrow, to decide the further course of action. And also what we are learning is that a very important national meeting of National Coordination Committee of Farmers Union is also going to take place today to decide the further course of action. If I just show you some more visuals out there, then you can see in the front also they have poured in more cement to make these blocks more concrete because what we are learning is that farmers are also bringing heavy machinery, excavators and then also modified tractors, fortified tractors to move these cement blocks. So for that very reason only, government has also beefed up their efforts to thwart any kind of movement because yesterday heavy tear gas shelling was seen at the Haryana-Punjab border, the Shambhu border and also the Khannori border, and also basically to disperse the farmers. So a standoff was basically visible between the farmers and the centre at the border after they have also rejected the proposal by the centre in which the centre came with a proposal to grant MSP for 5 crops, which also include maize and cotton for 5 years. But the farmers have said that this is actually not in their interest, so they will decide the further course of action. So it's very crucial to see as to what plan farmers come up with because centre has again said that they are ready for the 5th round of talks. All right, let me also bring in Shubh Rana at this point, who is joining us from the Tikri border. Shubh, what is the situation at the Tikri border today? What is the security paraphernalia that you can see around you, and what is likely now to be the farmers' strategy for the rest of the day today? See, I'm reporting live from the Tikri border, and I would like to show you the visuals because as you can see behind me, there is barbed wires, and this is one of the most crucial point, that is Tikri border, because as you can see in 2020, this is the main source where farmers had a very long staycation. And if I would like to show you the visuals, you can see the communals are facing a lot of problems because this is a narrow pathway through which these communals are passing by, and they have to go to work, they have to go to school, they have to go to their factories, and you can see how badly they are affected. And they have to first pass first barricade, then the second one, and after that auto rickshaws are placed there, which takes them to around 5 to 6 kilometers to their workplace. And as you can see that security forces have been deployed. This is the Delhi border, and in front of it, as you can see, the Welcome to Haryana board is placed there. This road connects to Bahadurgarh and Rohtak, and paramilitary force
CRPF, RAF are deployed here. I would like to show you the visuals here. You can see cemented barricades along with CRPF jawans have been placed there, and these two CRPF jawans have been placed there, which takes the vigilance of 24 hours. And as you can see, the security has been very tightened up, because although the farmers have said that they'll pause this protest for 2 days, but the visuals here are alarming, because more than 1,500 police officials have been deployed on ground just to see what would be the course of action. And at 9:30 there would be a very important conference at the Shambhu border, in which the farmers will tell what would be their future course of action. Yes, back to you. All right, Union Agriculture Minister Arjun Munda is also speaking currently. Let's go live across. पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है, और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो मैं आशान्वित हूँ अभी भी कि हम सब मिलकर के इसका सारांश निकालेंगे और इसका समाधान होगा। उन्होंने दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया और कहा है कि आपका जो वार्ता का प्रस्ताव है उस पर जो नेताओं ने कहा है कि वो आपका वार्ता का जो प्रस्ताव है उस पर किसानों से वो विचार विमर्श करें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। आज 2,80,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाती है। वो इस दृष्टि से कि किसान का सम्मान और किसान की आवश्यकता और किसानों के माध्यम से जो देश का अन्न भंडारण है वो बढ़े, और वो बढ़ भी रहा है। कई वर्षों के आंकड़े को अगर देखेंगे आप नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो पहले के तुलना में इस शासन में 333 मिलियन टन तक हमारा अनाज बढ़ा है। उसी तरीके से हमारे सब्जियों की खेती में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा, यानी सभी सेक्टर में। अभी मैं बात कर रहा था खादी में, खादी भी तो किसानों से जुड़े हुए ही उत्पाद है, सारा वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, मतलब उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। उसका टर्नओवर 1,35,000 करोड़ हो गया। उसी तरीके से कई जो कृषि सेक्टर से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसमें अच्छी प्रगति हो रही और उसमें लोग जुड़े हुए हैं। तो सबों के इस एफर्ट्स को, सबों के इस प्रयास को जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नया आधार मिला है, उसको हमें आगे बढ़ाना है और ऐसे कोई भी विषय आए उस पर हमें चर्चा करना है और चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि वार्ता की जानी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मैंने ये कहा है। और मैं जब चौथे दौर की बातचीत हुई उस समय भी मैंने कहा कि आप बातचीत करके बताइए और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। उन लोगों ने ये कहा था कि हम बाकी संगठनों से बातचीत करेंगे और फिर बताएंगे। तो ठीक है, उसमें हो सकता है उन्हें सहमति नहीं मिले,
वो अपने संगठनों के साथ, तो हम फिर से बात कर सकते हैं। कल काफी हिंसा हुई और नहीं, हिंसा मतलब आप देखिए, अब इस तरह की असामान्य स्थिति ना बने, शांति बनाए रखना चाहिए। MHA ने कहा है कि पंजाब सरकार को मतलब कि छूट मिलने के कारण कुछ असामाजिक तत्व किसानों को भी सोच। देखिए, अभी इस समय इस तरह की कोई बात मैं नहीं कहूँगा जो प्रशासनिक दृष्टि से आती है। यह सारा विषय प्रशासन का है। प्रशासन पंजाब की हो या सबको सामान्य स्थिति में आम नागरिक को किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो, इसके बारे में हर आदमी को ध्यान रखना है। Anil Chaudhary is joining us live from the Ghazipur border as well. Anil, what is the situation at the Ghazipur border today as far as the security apparatus is concerned? Also, is traffic movement still being affected at the border areas of Delhi? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब जब किसानों द्वारा कॉल की गई है वो दिल्ली कूच करेंगे, जगह जगह जाम की स्थिति देखी गई है। जैसे कल कई किलोमीटर लंबा जाम, ये दिल्ली में एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ, इसी रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ देखा गया था। कई एम्बुलेंस फंसी हुई थी, परेशान थे लोग। पर आज आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ट्रैफिक चल रहा है, स्मूथली ट्रैफिक जो है चल रहा है। ये दिल्ली में एक्सप्रेस वे है, वहीं आपको जो बराबर में दिखा रहा हूँ ये NH9 है। तो कहीं ना कहीं आज लोगों को राहत जरूर मिली है। जो लोग दिल्ली जाते हैं सुबह सुबह गाजियाबाद से होते हुए, तो कहीं ना कहीं वो जाम में फंस रहे थे लोग। कल उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि कैसे भी सरकार और फार्मर्स के बीच में जो वार्ता है वो अब होनी चाहिए, मतलब बन जानी चाहिए बात, क्योंकि लगातार हम लोगों आम जनता को परेशान होना पड़ता है। आए दिन प्रदर्शन होते हैं, ये उसमें उसमें इसको लेकर जो है जो लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है जाम की जो है इस क्षेत्र में देखी जा रही है, क्योंकि एक ही साइड को चलाया जा रहा है एहतियात के तौर पर ये एक लाइन को बंद किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो या NH9, इनके सभी का एक साइड को रनवे किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, जिससे लोग जा पा रहे हैं। हालांकि 2 दिन का अभी स्टे है किसान आंदोलन जो दिल्ली जो कूच करने की बात है वो 2 दिन के लिए रोक दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए आज राहत है, अंडर कंट्रोल पूरी सिचुएशन है। और ऐसे में पुलिस फोर्स की बात की जाए तो पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है, RF की टीम वहां है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ तैनात है, धारा 144 लगी हुई है। लोगों को अनाउंसमेंट कर लोगों को समझाया जा रहा है कि आप यहाँ पर 4 व्यक्तियों से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। धारा 144 लगी हुई है। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर कोई भी धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं है। इस तरीके की बातें साफ तौर पर लिखी है। यदि कोई ऐसा काम करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात पुलिस कर रही है। महेंद्र माही का भी रुख कर लेते हैं। जिला बॉर्डर से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग महेंद्र, व्हाट इज द सिचुएशन एट द जिला बॉर्डर टुडे? व्हाट आर यू सीइंग अराउंड यू देयर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पंजाब के किसान हैं दिल्ली कूच करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, तो किसानों को साफ तौर पे कहना है कि 2 दिनों तक हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे, आपसी बातचीत करेंगे और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा जिला बॉर्डर पर। पीछे मेरी तस्वीरें देखेंगे आप किस तरीके से जिस तरीके से कहा गया है कि किसान 2 दिनों तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो कम कर दी गई है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो नोएडा में कल जिस तरीके से ट्रैफिक था तमाम बॉर्डर पर आपने देखा होगा कि काफी भीड़ लगी थी, जाम की स्थिति बनी हुई थी, मगर आज कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आ रही। जो ट्रैफिक स्मूथली चलता ही जा रहा है, मतलब रुकने का कहीं वो नहीं है, ना कहीं ट्रैफिक। खासकर जिला बॉर्डर की बात करें, DND बॉर्डर की बात करें, कालिंदीकुंज बॉर्डर की बात करें, तमाम जगहों पर जो ट्रैफिक है स्मूथली चलता जा रहा है। क्योंकि आज देखिए आज यूपी बोर्ड की परीक्षा भी आज शुरू हो गई 10वीं और 12वीं की, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और ज्यादा अलर्ट मोड पे। तमाम सुबह से ही जो ट्रैफिक विभाग के पुलिस कर्मी है वो सड़कों पर मौजूद है और लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से डायरेक्शन देना और किस रास्ते पे उन्हें जाना है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो किसान आंदोलन की वजह से तमाम ऐसे रास्ते हैं जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिला था। खासकर अगर आप नोएडा से कालिंदीकुंज जाते हैं तो वहां आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, या दिल्ली से आप नोएडा की तरफ आते चिल्ला की तरफ से तो वहां आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। मगर 2 दिन के किसान आंदोलन में जो किसानों ने मना कर दिया हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे, वहीं
जिस तरीके से लगातार हमने देखा चौथे राउंड की बातचीत हुई सरकार से हुई, मगर उसमें कोई सारी बैठक बेनतीजा निकली और बार बार ये कयास लगाया जा रहा है कि अगला जो बैठक का दौर होगा या पांचवें राउंड की बातचीत होगी, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा और कहीं ना कहीं जो किसान है अपनी बातों को सरकार के आगे बड़ी अच्छे तरीके से रखेंगे और सरकार भी उनकी बातों को कहीं ना कहीं मानेगी। क्योंकि देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो उसके मद्देनजर भी जो पंजाब के किसान है या कहें जो हरियाणा के किसान है, कहीं ना कहीं इसको देखा जाएगा। वहीं कल जिस तरीके से हमने देखा कि नोएडा के जो किसान थे, जो इनको अपना सहयोग देने के लिए नोएडा के तमाम जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है या कहें पूरे उत्तर प्रदेश में जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जो किसानों की मांग है उस पर विचार किया जाए और जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान है उनकी जो मांग है उस पर भी उन्होंने आंदोलन किया। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.